Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो सब जैसे आप सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय से पठन कर रहे हैं और आज के जो श्लोक हैं वो है 36 और 37, 36 एंड 37। तो श्लोक इस प्रकार से है। तो पहले मैं दोनों श्लोक और उनका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लूंगा, उसके बाद में फिर हम आगे इस दोनों श्लोक के ऊपर जो मैंने सुना है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। विमृजयाश्रुणि पानिभ्यं विस्ताभ्यात्मानं आत्मन अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादव अनुस्मरम। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. First, he slowly pacified his mind by intelligence and wiping away his tears and thinking of the feet of his master, Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthira. Shlok Sankhya 37. Sanjayovacha naham veda vyavasitam pitror vahkula nandana gandharya vaha mahabhao Mushito asmi mahatma bhi. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sanjaya said, "My dear descendant of the Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls. The great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. It is said that Lord Krishna also advised Yudhishthira to tell a lie before Dronacharya, and it was also for a great cause. The Lord wanted it, and therefore it was a great cause. Satisfaction of Lord is the criteria on one who is bona fide, and the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one's occupational duty. That is the verdict of Gita and Bhagavatam. Dhritarashtra and Vidura, followed by Gandhari, did not disclose their determination to Sanjaya, although he was constantly with Dhritarashtra as his personal assistant. Sanjaya never thought that Dhritarashtra could perform any act without consulting him. But Dhritarashtra going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sanjaya. Sanatan Goswami also cheated the keeper of the prison house while going away to see Sri Chaitanya Mahaprabhu, and similarly, Raghunath Das Goswami also cheated his priest and left home for a good to satisfy the Lord. To satisfy the Lord, anything is for good, for it is relation with the absolute truth. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. Such cheating was necessary for a great cause, and there is no loss for any party in such transcendental fraud. Hare Krishna. Om Agyan Thimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadambiyam Dadati Swapadamtikam. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पातलं। यदि दास्यास्ति मे कामां वरं त्वां वरदर्शव कामानां हृदय संमोहं भवतात्। कुर्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तवैव पश्यन्ति न चिरेण तावकं भवत्प्रभावोपरं। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र है, हरे कृष्णा, जो हम जैसे हमने अभी तक जो संदर्भ में देखा है कि धृतराष्ट्र अपना जो घर है छोड़ने के लिए उनका इंस्ट्रक्शंस विदुर जी ने उनको दिया है। तो जब धृतराष्ट्र जा रहे हैं तो धृतराष्ट्र के साथ साथ उनकी पत्नी गांधारी वो भी उनके साथ में, क्योंकि वो पतिव्रता थी, इस वजह से वो भी उनके साथ में अपने पति के साथ में वो भी चली गई। तो जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर आते हैं, कक्ष के अंदर आते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का ये नियम था, वो सुबह उठते, जैसे हमने पहले के श्लोकों में देखा है, तो वो क्या करते, वो पहले जाके डीटीज को अपना दंडवत करते, उसके बाद में वह धृतराष्ट्र और गांधारी के पास आते और उनका आशीर्वाद लेते, वहां पर आके उनको नमन करते। तो जैसे ही वहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए युधिष्ठिर महाराज उनके कक्ष में आए तो उन्होंने देखा वहां पर वो नहीं है। तो उन्होंने जब विदुर जी को ढूंढने का प्रयास किया तो विदुर जी भी उनको नहीं मिले। और विदुर जी तो जैसे हम जानते हैं कि काफी समय के बाद में, मतलब जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ था तब विदुर जी चले गए थे तीर्थ यात्रा पर, और इतने समय के बाद में जब वो आए थे और थोड़े समय के लिए मतलब हस्तिनापुर के अंदर मतलब ठहरे थे, तो उनका क्या एम था, उनके दिमाग के अंदर क्या बात थी, वो हमने भी पहले के श्लोकों में देखा हुआ है कि जैसे विदुर जी का ध्यान ये था कि अब मतलब धृतराष्ट्र का समय हो चुका है, अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, मगर अभी भी उनकी आसक्ति अपनी फैमिली के साथ में और उनको आराम की जिंदगी अभी बितानी है। तो वो ध्यान में रखते हुए विदुर जी आते हैं और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता हो जाती है कि क्यों तीनों नहीं मिल रहे। तो उनको ये लगता है कि शायद जो उनके चाचा और उनकी चाची यानी उनके मतलब सॉरी धृतराष्ट्र और गांधारी, ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मैंने उनकी आवभगत सही ढंग से नहीं की या उनका मैंने सही प्रकार से उनका ख्याल नहीं रखा, इस वजह से उन्होंने अपने आप को गंगा के अंदर डुबो दिया हो। तो ये उनको मन के अंदर ख्याल आता है और उनको फिर ये भी चिंता होती है कि गांधारी और धृतराष्ट्र इन्होंने अपने 100 के 100 पुत्र और उसके बाद में अपने पौत्र सब जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खो दिए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इतना सब जो है उनको दुख हुआ है, इस दुख के वजह से और ऊपर से मैंने इनको सही प्रकार से इनका जो है सम्मान नहीं किया, सही प्रकार से इनका ख्याल नहीं रखा, इस वजह से मेरे चाचा और चाची दोनों ने जाके हो सकता है गंगा जी के अंदर डूब के अपना जीवन मतलब समाप्त कर लिया। तो ये जो चिंता थी, ये जो एक ख्याल था वो उनके मन में बार बार उठ रहा था और इस वजह से वो और चिंतित हो गए। तो जब भी हम मतलब ऐसे हमारे साथ में कभी ऐसा होता है कि हम किसी का हाल हवाल पूछना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे पहले जाके जो व्यक्ति जिसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं, जो व्यक्ति उस व्यक्ति की किसके साथ में संपर्क है, उसका ज्यादा किसके साथ में कांटेक्ट है, हम उसको जाके पूछते हैं कि भाई ये बंदा कहाँ है या ये व्यक्ति कहाँ है, काफी दिनों से दिखा नहीं। तो ठीक उसी तरह युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या किया, युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि धृतराष्ट्र जो कि मतलब जन्म से ही जो मतलब अंधे थे, देख नहीं पाते थे, तो वो उनका सहारा या उनका सेक्रेटरी या उनका पूरा जो ख्याल कौन रखता था, तो वो संजय रखते थे। तो संजय, उन्होंने यही उचित समझा कि भाई संजय है तो संजय जो उनका सेक्रेटरी है या उसका असिस्टेंट है, तो उससे जाके मैं पूछूं कि भाई धृतराष्ट्र का क्या मतलब हाल है और कहाँ है, क्यों दोनों दिखाई नहीं देते। तो युधिष्ठिर महाराज जो है जाते हैं संजय से और संजय से पूछते हैं कि भाई
ये जो संजय से पूछते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों कहाँ हैं। तो संजय से जब उन्होंने पूछा तो संजय ने पहले तो कुछ उनको जवाब नहीं दिया। बाद में, क्योंकि वो इतनी तरह से पीड़ित है, संजय इतनी तरह से दुखी हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जो मतलब धृतराष्ट्र बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि संजय को भी बिना बताए वो वहां से चले गए थे, और संजय भी उनके बारे में जानता नहीं था कि मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों कहाँ गए हैं। तो आज का जो ये श्लोक है, इसके अंदर यही बात जो दोहराई गई, यही बात यहाँ पर बताई गई है श्लोक संख्या के अंदर 36 और 37 में। तो जो युधिष्ठिर महाराज जो श्लोक संख्या 37 के अंदर जैसे बताया गया, तो 37 के अंदर क्या बताया है कि संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितां पित्रोः व कुलनंदना गांधार्य व महाबाहो मूषितो अस्मि महात्मभिः। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है कि पहले तो हम एक शब्द देखते हैं कि शब्द है पित्रोः। तो मैंने लेक्चर सुना था भक्ति चारू स्वामी महाराज का, तो वहाँ पर वो इतना सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं कि पहले कहते हैं कि भाई संस्कृत जो अपनी लैंग्वेज है, संस्कृत जो हमारी भाषा है, उस भाषा के अंदर कितना मतलब कि कितनी डिटेल और कितनी साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक किस प्रकार से है तो वो समझाते हैं कि इंग्लिश के अंदर होता है सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, ये इंग्लिश में होता है। मगर संस्कृत में कैसा होता है, एक वचन, द्विवचन यानी दो वचन, एंड प्लूरल और बहुवचन। तो यहाँ पर जो मतलब पित्रः, पित्रोः और पित्रः, ये जो है तीन प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो पिता यानी सिंगुलर होगा, पित्रो यानी द्विवचन यानी डबल होगा, ड्यूअल होगा, और पित्रः वो होगा मतलब बहुवचन। तो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है पित्रोः। पित्रोः का मतलब क्या होता है, दो वचन। तो यहाँ पर किसको संबोधित किया गया है, तो संजय यहाँ पर बता रहे हैं दो लोगों के बारे में। तो दो लोग कौन हैं, तो वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र और विदुर के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद में वो क्या बताते हैं संजय जी, संजय बताते हैं कि आई हैव बीन चीटेड मूषितः, मतलब मुझे जो है इन्होंने धोखा दिया है। कि और धोखा भी किसने दिया है, महाआत्मभिः, यानी महात्मा लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो इट शुड हैव बीन, तो यहाँ पर भी जो है मूषितः महाआत्मभिः, तो यहाँ पर जो है महाआत्मभिः जो है वो जो है दो वचन हो जाए, क्योंकि पहले उन्होंने क्या बताया है, पित्रोः, पित्रो यानी धृतराष्ट्र और विदुर के बारे में बताया है। मगर यहाँ महाआत्मभिः का मतलब होता है, ये महाआत्मभिः वचन बहुवचन हो जाता है, यानी मोर देन टू। तो तीन यहाँ पर कैसे हो गए, यहाँ पे दो वचन होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र और विदुर के बारे में बताया। तो यहाँ पर तीन जो महाआत्मभिः का मतलब दो से ज्यादा यानी प्लूरल बताया। तो प्लूरल के अंदर क्यों बताया है, प्लूरल इसके लिए बताया क्योंकि यहाँ पर वो संबोधित करते हैं कि तीन महात्माएं हैं। और तीन महात्मा कौन है, तो धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी। गांधारी भी उनके साथ में थी। तो तीनों महात्माओं ने जो है मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है। तो वाई संजय इज सेड ही इज बीन चीटेड, तो यहाँ पर हमको लगता है बिकॉज संजय ऐसा क्यों बता रहे हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ है, क्योंकि उनको बिना बताए वहां से चले गए थे। तो अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न जो है महाराज बता रहे थे, और श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि महात्मा कभी किसी को चीट कर सकते हैं। तो जब भी हम ये सुनेंगे कि किसी महात्मा ने किसी को चीट किया, तो हमको लगेगा अरे यार फिर वो महात्मा कैसे हुआ, ये तो उसकी जो है क्वालिटी नहीं है महात्मा की। तो यहाँ पर बताते हैं वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि महात्मा कैसे चीट कर सकता है। एक जो इतनी ऊंचे पद पे है, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर पूरी जानकारी रखता है, वह ऐसे कैसे मतलब किसी को चीट कर सकता है। तो हमको एक अचरज वाली बात लगा देती है। तो और इतने जो मतलब महाजन हैं या महात्मा हैं, वो कैसे मतलब किसी को चीट कर सकते हैं। और चीटिंग, जो किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर एक तो बताते हैं कि महात्मा है, और दूसरा बताते हैं उन्होंने चीटिंग किया। तो श्रील प्रभुपाद इस बात को बहुत सुंदर तरीके से इस जो परपट के अंदर बताते हैं, और महाराज ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखिए कि माँ होती है, क्या हमारी माँ, जब हम छोटे थे, बचपन में हम जब छोटे थे,
तो जब भी हम दवाई नहीं पीते थे, और दवाई क्यों नहीं पीते थे, क्योंकि वो कड़वी होती थी। तो माँ अगर हमको क्या करती है, माँ हमको बोलती है बेटा ये तो बहुत ही मीठी है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट है, ये तो रसगुल्ले से भी स्वीट है। तो आप सोचिए कि रसगुल्ले से कोई ज्यादा स्वीट चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मतलब माँ वहां पर झूठ बोलती है, मगर झूठ किसके लिए बोलती है? कि अगर बच्चा दवाई पिएगा, अगर वो उसको बोलूंगी कड़वी दवाई है तो बच्चा पिएगा नहीं, वैसे ही वो रो रहा है कि दवाई मुझे नहीं पीनी है, उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है इसकी वजह से। तो माँ उसको क्या कहती है कि ये तो रसगुल्ले से भी मीठी है, और वहां पर वो झूठ बोलती है। तो ये झूठ किसके लिए है? क्या माँ के खुद के स्वार्थ के लिए? माँ का स्वार्थ नहीं है वहाँ, वहाँ माँ का प्यार है, क्योंकि वो उसको इसलिए दवाई दे रही है ताकि बच्चा स्वस्थ हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि ये ग्रेटर कॉज के लिए है। अगर कोई महात्मा झूठ बोलते हैं तो वो किसी उससे उससे बहुत लोगों का भला होता है, उनका वो उनके खुद के स्वयं के भले के लिए नहीं कहते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो महात्मा झूठ बोलते हैं, या महात्मा की ऐसे ऐसे विषय आते हैं, तो वहां पर अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं या वो निर्णय लेते हैं तो वो जग कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए लेते हैं। तो जो परपट के अंदर श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि महात्मा चीट करते हैं, तो वहां पर एक कृष्ण का आता है, युधिष्ठिर महाराज वाला एक जो संदर्भ आता है महाभारत के अंदर से। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जब मतलब युधिष्ठिर महाराज को बोला गया कि आप जो है ये बोल दो कि भाई अश्वत्थामा मारा गया। वो हम सब जानते हैं अश्वत्थामा कौन था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो वहां पर जो द्रोणाचार्य उस दिन इतने मतलब जोश से लड़ रहे थे, और क्योंकि वो उनके गुरु भी थे, पांडवों के गुरु थे और कौरवों के गुरु थे, और वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे कि जितने भी वहां पर उनके सैनिक थे पांडवों के, वो कह रहे थे कि आज तो मतलब द्रोणाचार्य को इनको ये अजीता है। वैसे हम कहते हैं कृष्ण का नाम अजीता है जिसको हम जीत नहीं सकते, मगर वहां पर वो लोग इनको कहते हैं कि आज द्रोणाचार्य तो अजीता है क्योंकि ये इसको हम आज जीत नहीं सकते, ये तो इतने न तो गुस्से से लड़ रहे हैं और इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से हमको समाप्त कर देंगे। तो जो पांडव हैं वो जाते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण से कहते हैं कि भाई अभी इनको कैसे रोका जाए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि द्रोणाचार्य तब अपने जो है अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे जब उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार अगर सुनेंगे, तो वो मतलब अपने जो अस्त्र शस्त्र को त्याग देंगे, और उस समय जो धृष्टद्युम्न है वो आके इनको मार दे। तो द्रोणाचार्य वहां पर मतलब लड़ रहे हैं, और पांडवों ने अभी कहते अभी वो कैसे संभव है कि द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र कैसे त्यागेंगे? तो बोला जब उनको उनके पुत्र की मतलब समाप्ति, उनकी मृत्यु का समाचार अगर उनको मिलेगा तो वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। तो अभी ये जब उन्होंने निर्णय लिया तो सब कृष्ण ने सबको कहा, तो सब जितने भी वहां पर सैनिक थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सबकी बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ अगर जो सत्यवादी हैं, कौन है वो है युधिष्ठिर। अगर युधिष्ठिर ये कहे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं इस बात को मान लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण फिर जो है इनको कहते हैं, किनको कहते हैं? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को कहते हैं कि अभी आप कह दो कि भाई अश्वत्थामा मारा गया। तो मतलब पहले तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो उस समय फिर युक्ति करते हैं कृष्णा, और कृष्णा कहते हैं भीम से जाओ, वहां पर अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उस हाथी को आप मार दो। तो उस भीम के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो भीम अपनी गदा लेकर गया और उन्होंने जाके जो हाथी को समाप्त कर दिया, हाथी को मार दिया। बोला अभी तुम कह सकते हो, अभी युधिष्ठिर से कहा कि अभी तुम कह सकते हो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो तब युधिष्ठिर महाराज जी वहां क्या कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि अश्वत्थामा हति इति गज, यानी वो क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा जो गज है, गज यानी हाथी है। तो जब अश्वत्थामा हता ये कहते हैं तो उसी समय जो कृष्ण क्या करते हैं, अपना शंख और दूसरे जो भी सैनिक हैं वो अपने जोर जोर से शंख और नगाड़े बजाते हैं। तो जो पीछे का हिस्सा है
वो इति गज, वो जो है द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते, और उनको लगता है कि अभी तो इसने अपना युधिष्ठिर ने, जो सत्यवादी है, कभी उसने झूठ नहीं कहा, उसने भी अभी कह दिया कि अश्वत्थामा मतलब हत मारा गया है, तो वो अपने जो अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं। और तभी धृष्टद्युम्न वहां पर आता है, धृष्टद्युम्न आके जो द्रोणाचार्य को मार देता है। तो द्रोणाचार्य का वो भी हम जानते हैं कि धृष्टद्युम्न कौन था। धृष्टद्युम्न जो है धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। और जैसे कि मतलब अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारना था, और फिर जो भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, हाथी को मार दिया, और पूरा जो ये मतलब संदर्भ आया। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि हमको क्या करना है, What should we do when Krishna tells us to lie? अगर भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि आप जो है झूठ बोलो, तो यानी हमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और तुरंत हमको झूठ बोलना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि हम जो है हमेशा दास हैं। हमारे नाम भी कैसे हैं, उद्धव प्रेष्ठ दास, गोपी मनोहर दास, सब दास हैं। तो हम दास हैं। दास का काम क्या होता है? दास का काम होता है कि अपने मालिक की बात सुनना और जो वो कहता है उसके हिसाब से करना। तो अगर हम मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर उदाहरण देते हैं कि अगर ड्राइवर है, एक शॉफर है, और वो एक मर्सिडीज गाड़ी चला रहा है। मर्सिडीज गाड़ी के अंदर सब कुछ फैसिलिटीज हैं, अंदर एसी है, अच्छे से कालीन बिछी हुई है, छोटा सा फ्रिज है, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, और अच्छी सी म्यूजिक चल रही है, और बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है जो मर्सिडीज गाड़ी के अंदर। अगर वो शॉफर है, वो शॉफर मालिक के हिसाब से, मालिक उसको कहता है कि रीजेंट स्कूल ले चलो, और वो ड्राइवर जो है, जो शॉफर है, वो क्या करता है, वो उसको शारजा ले जाता है। रीजन स्कूल कहाँ पर है? जो टीकॉम के अंदर है, ग्रीन्स के अंदर है, और ये दूसरी जगह पे है, शारजा के अंदर को ले जाता है। तो वो क्या करेगा? जो मालिक है, जो गाड़ी का मालिक है, वो क्या करेगा? वो उसको बोलेगा, बाबा तू गाड़ी से नीचे उतर और मैं खुद गाड़ी लेके जाता हूँ। क्यों ऐसा? तो ऐसे जब ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने मालिक की बात नहीं सुनी। मालिक की बात नहीं सुनी, पहले वो क्या था, मालिक की बात सुन रहा था, इसके लिए उसको मर्सिडीज गाड़ी चलाने मिल रही है, साथ में उसको एसी का आनंद मिल रहा है, कारपेट जो है बिछा हुआ है उसका वो आनंद ले रहा है, सुंदर म्यूजिक चल रही है उसका आनंद ले रहा है, अंदर फ्रिज के अंदर सब ठंडे जूसेस पड़े हैं वो पी सकता है, उसका आनंद ले सकता है। तो अगर वो ऐसा करता है, क्यों? वो ऐसा कब आनंद ले सकता है? जब वो मालिक की बात सुनता है। और अगर मालिक की बात नहीं सुनता तो क्या करते हैं? उसको मालिक बोलता है ठीक है गाड़ी से उतरो, तो गाड़ी से उसको बाहर, आधे रास्ते में गाड़ी से बाहर उतार देते हैं, और वो बाहर खड़ा हुआ है जहां पर 45 डिग्री से लेके 50 डिग्री बाहर जो गर्मी है, पसीने से तर हो जाता है, क्योंकि उसने मालिक की बात नहीं सुनी। तो ठीक उसी तरह हमको भी भगवान हमारे मालिक हैं, हमको उनकी बात सुनना है। अगर हम बात नहीं सुनेंगे तो हम जो बाहर रेगिस्तान में बाहर छोड़े जाएंगे। अगर उनकी बात सुनेंगे तो हम सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद उदाहरण के अंदर बताते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। अभी दूसरा एक हमेशा एक बात हमारे ध्यान में आती है, या हम बात सुनते हैं कि जो अपने युधिष्ठिर महाराज हैं, उनको भी नर्क में जाना पड़ा, भले थोड़े समय के लिए भी जाना पड़ा। वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहां पर जो उन्होंने ये झूठ बोला था। तो बहुत सुंदर तरीके से महाराज ने यहाँ पर बताया क्या मतलब युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था। तो सही माने में युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं कहा था। झूठ क्यों नहीं कहा था? उन्होंने तो कहा था कि अश्वत्थामा हता इति गज, ये उन्होंने कहा था। जबकि तो उन्होंने तो सही बोला था, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। ये तो जो मतलब द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने पीछे वाली बात नहीं सुनी, तो वो बात अलग है। इन्होंने तो सही कहा था। तो इसके लिए ये बात जो खंडन यहाँ पर होता है कि युधिष्ठिर महाराज वहां पर जब नर्क में जाते हैं, तो वहां पर नर्क में इसके लिए नहीं गए थे ताकि वो मतलब उन्होंने ये झूठ कहा था। तो ये बात यहाँ पर इसका खंडन होता है। फिर दूसरी बात आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये दूसरा रीजन दिया गया है कि मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट दी गई है कि कैसे मतलब जो है युधिष्ठिर महाराज वो नरक में इसके लिए नहीं गए थे कि उन्होंने झूठ बोला था। तो उसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भगवत गीता के अंदर
भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर आपने मेरी शरण ली, आप मेरे भक्त बन गए, तो आपके सब पापों को मैं खत्म कर दूंगा। तो क्या भगवान झूठ बोलेंगे? नहीं। अगर आपने जो पाप नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सभी पापों से अगर मुक्त कर दिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो हमें भगवान के भक्त थे, तो वो अगर उन्होंने भगवान की शरण ली है तो भगवान के उनको पूरे पाप जो है मुक्त, उनसे मुक्त कर देंगे। तो अगर पाप से मुक्त हो गए तो फिर यमराज के पास कैसे जाएंगे? यमराज के पास कौन जाता है? जिन्होंने पाप किए हैं। तो जो सब पाप उन्होंने भगवान ने उनके हर लिए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर यमराज के पास क्यों गए थे? तो ये तो बात ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। तो यही बात गलत है। यानी भगवान जो यमराज के पास जो युधिष्ठिर महाराज गए थे, तो ये इसकी वजह से नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तो ये बात को भी खंडन हो जाता है। फिर तीसरी बात आती है कि अभी यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से महाराज ने समझाया। कहते कि यमराज कौन है? यमराज एक महाजन है। एक महाजन है, यानी वो एक शुद्ध भक्त है भगवान का। और फिर युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर भी एक शुद्ध भक्त है। यमराज जी को समय नहीं मिलता कि शुद्ध भक्तों का संग कर सकें। तो इस वजह से जो भगवान की अरेंजमेंट थी कि यमराज के पास युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तो एक भक्त अगर दूसरे भक्त से मिलता है तो क्या वो उसको दंडित करता है? नहीं, वो उससे आनंदित होता है, वो उससे प्रफुल्लित होता है, वो आनंदित होकर प्रफुल्लित होकर उनसे बात करता है। तो ये मतलब वहां पर यमराज के पास गए थे तो ये भगवान की अरेंजमेंट थी कि वो दो भक्त वहां पर मिले। और साथ ही साथ इसके साथ में दूसरी क्या बात आती है? साथ ये आती है कि जब युधिष्ठिर महाराज एक शुद्ध भक्त वहां पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? वो जाते हैं, किसके पास जाते हैं? यमराज के पास जाते हैं, यमलोक के अंदर। तो यमलोक के अंदर सब कौन है? यमलोक के अंदर जिन्होंने भी पाप किया है वहां पर पीड़ित लोग हैं। तो जब एक शुद्ध भक्त वहां पर जाता है तो उस शुद्ध भक्त को देखकर, उनके दर्शन करके जितने भी वहां पर लोग पीड़ित हैं, जो नर्क के अंदर है, उनका भी उद्धार होता है। तो यहाँ पर इस वजह से जो युधिष्ठिर महाराज वहां पर गए थे तो ये भगवान की अरेंजमेंट थी, और वहां पर जाके दूसरे जो यमलोक के अंदर जो लोग थे उनका उद्धार करने के लिए गए थे। फिर शिला प्रभुपाद इस जो महात्मा जो चीटिंग करते हैं उनके बारे में बताया है अपने पर्पट्स के अंदर। तो यहाँ पर पर्पट के अंदर ये बताया गया है कि सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया गया। तो सनातन गोस्वामी जी कौन थे? तो वो चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? तो नवाब, बंगाल के जो नवाब थे उनके चीफ मिनिस्टर थे, और वहां उनका पूरा वो कार्य संभालते थे। तो नवाब हमेशा उनको ये कहते, सनातन गोस्वामी को, कि मैं तो एक डकैत हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो, मेरा काम है चोरी करना, लूटना और आदमियों को मारना, ये मेरा काम है। मगर मेरा जो राज्यकाल जो है, राज्य पूरा कौन संभाल रहा है? वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहा है। भले ही तुम चीफ मिनिस्टर हो, मगर पूरा जो राज्य है वो तुम्हारे अंडर में चल रहा है। तो सनातन गोस्वामी जी ने एक बार जो है उनसे कहा कि भाई मैं अभी आपकी यहाँ से जो है आपकी जॉब से मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे जाना है, क्योंकि मैं आप ये काम छोड़कर मुझे अभी चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। तो नवाब ने पहले उनको समझाया कि नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, और तुम जो है मेरे पूरे किंगडम, मेरे पूरे राज्य को तुम संभालते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है कैसे के। तो एडमेंट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है चैतन्य महाप्रभु के पास। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, नवाब ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे और वो उनका काम नहीं कर रहे थे। तो जब ही उनको जेल में डाल दिया तो नवाब का काम तो लूटना था, तो वो क्या करने गया, वो उड़ीसा के जो राजा के ऊपर उन्होंने जो है हमला कर दिया, और वहां पर नवाब वहां पर लूटने के लिए वहां पर गए। तो वो बंगाल में नहीं थे। तो जब इनको सनातन गोस्वामी को जेल में रखा गया तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, वहां के जो प्रिजनर थे, जो वहां पर कैदियों को देखते थे, देख रेख करते थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। उनसे कहा कि देखो, तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारा आध्यात्मिक भी जो है और भौतिक दोनों लाभ होगा। तो जो उनका कैदी था, जो मतलब प्रिजन कीपर था, वो उनसे पूछता है कि मेरा कैसे फायदा होगा। तो उन्होंने कहा देखो, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ से
ये जो है छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं जाके आध्यात्मिक कार्य करूंगा। आध्यात्मिक कार्य करूंगा यानी इसका लाभ किसको मिलेगा? क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा है तो तुम्हारा भी बेनिफिट होगा, तुम्हारा भी लाभ होगा। और साथ ही साथ तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी धनराशि दूंगा, जिससे तुम्हारा मैंने भौतिक लाभ भी होगा। तो वो कन्विंस हो गया, जो प्रिजन कीपर था वो कन्विंस हो गया कि ठीक है, मुझे जो है यहाँ से अभी ये दोनों लाभ होंगे। तो फिर उसके मन में ये ख्याल आता है, जो प्रिजन कीपर के मन में ख्याल आता है, वो कहता है कि भाई अगर मैंने छोड़ दिया और नवाब वापस उड़ीसा से वापस आ गया और उसने देखा कि आप यहाँ पर नहीं हो, तो वो तो मुझे मार डालेगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम उसको खाली इतना कह देना कि मैं जो है ना सुबह को शौच के लिए नदी के किनारे गया था, यानी टॉयलेट के लिए नदी के किनारे गया था, क्योंकि मेरे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, तो मैं नदी के अंदर गिर गया और डूब के मैं मर गया। तो अगर ऐसा बोलोगे तो वो आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा और आपको दंडित नहीं करेगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी ने जो चीट किया नवाब को और वहां से चले गए। और उनका कॉज क्या था, उनका कारण क्या था? वो एक आध्यात्मिक कारण था, जिसकी वजह से वो दूसरों का उद्धार करने की सोच रहे थे। इसी तरह रघुनाथ गोस्वामी के बारे में भी इस संदर्भ के अंदर जो है श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने भी चीट किया। तो उन्होंने कैसे चीट किया? तो ये बताते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह अपने घर को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, उनकी यंग पत्नी थी, उनको छोड़कर वो चले गए। जब उनकी पत्नी उठी और उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु नहीं है, तो वो चिंतित हो गए। और उन्होंने बाद में उनकी पत्नी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, तो ये भी बिना बताए वहां से चले गए थे। उसके बाद में दूसरा बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण आता है वामन देव, जिन्होंने बलि महाराज को चीट किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो जितने भी महात्मा हैं, वो महात्मा कैसे, वो अगर चीट करते भी हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि उससे ज्यादा किसी का, बहुत ज्यादा लोगों का भला होता है। सो दिस चीटिंग इज जस्टिफाइड। इसके लिए जो चीटिंग है, जो ये धोखाधड़ी है, ये इसको जस्टिफाई किया गया है। और इफ समवन चीट्स फॉर हिज बेनिफिट, अगर वो अपने बेनिफिट के लिए चीटिंग करता है तो ये गलत है। बट वो किसी और के लिए, और के, जैसे हमने उदाहरण देखा, माँ का उदाहरण देखा, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जैसे युधिष्ठिर से झूठ बुलवाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि सनातन गोस्वामी का हमने देखा, उसके बाद में रघुनाथ गोस्वामी का देखा, चैतन्य महाप्रभु का देखा। तो ये दूसरों के उद्धार के लिए, तो दूसरों के उद्धार के लिए अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो ये अच्छी बात है। इससे हम क्या सीख मिलती है? तो पहले तो युधिष्ठिर महाराज के जो ये संदर्भ में हमको क्या सीखने को मिलता है? तो हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको भगवान श्री कृष्ण के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सुनने चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। तो इफ कृष्णा सेज वी मस्ट डू इट, हमको कृष्णा अगर कहते हैं कि हमको तुरंत वो चीज को करना है। अगर कृष्णा कहते हैं झूठ बोलो तो बोलो, अगर कृष्णा कहते हैं किसी को मारो तो मारो। तो अर्जुन ने भी यही किया। अनदर एग्जाम्पल इज कृष्णा टोल्ड अर्जुन से कहा गया कि तुम अपने भाई कर्ण को मार दो। और कर्ण की क्या स्थिति थी? कर्ण के पास तो हथियार भी नहीं थे, और वो मतलब उस समय जो युद्ध का ये लॉ था, युद्ध का ये रूल था कि अगर कोई युद्ध नहीं करना चाहता तो उसको मारना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो जिसके पास हथियार नहीं है तो उसके ऊपर भी तुम आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये दोनों स्थितियां थी। एक तो जो कर्ण को युद्ध नहीं करना था क्योंकि उसका जो रथ का जो पहिया था वो गड्ढे में फंस गया था, उसको वहां से निकाल रहा था। और दूसरा, उसने उस समय पे अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए थे और वो अपने रथ के पहिए को निकालने के अंदर जो बिजी हो गया था, व्यस्त हो गया था। तो मगर तभी उसको भगवान ने क्या कहा? अर्जुन से कहा इसको मार दो। अर्जुन ने तुरंत उनको मार दिया। तो क्यों? इट वॉज फॉर द बेटर कॉज, फॉर ग्रेटर कॉज, बड़े जो है कार्य के लिए ये था। और इसी तरह जो महाराज बताते हैं कि अर्जुन जो थे वो बड़े भक्त थे युधिष्ठिर महाराज से भी। देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ महाराज ने बताया। कहते हैं हालांकि सब पांडव जो हैं भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और शुद्ध भक्त थे, मगर अर्जुन को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि अर्जुन को ज्ञान होते ही अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान की हर बात को तुरंत मान लिया, कहा इसको कर्ण को मार दो, मार दिया। तो ठीक
मगर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज के पास उनके दूसरे मतलब उनके दिमाग में दूसरी बात थी, क्योंकि उनको ऐसा था कि भाई ये मॉरल कंसिडरेशन, यानी हमको देखना है कि भाई ये शास्त्रों के हिसाब से सही है कि नहीं है। मगर जब भगवान आपसे कहते हैं कि ये गलत है, तो भगवान से बड़ा शास्त्र क्या हो सकता है? भगवान स्वयं शास्त्र के जो है निर्माता हैं, रचयिता हैं। तो फिर तो जो भगवान ने कहा वही सही है। उसके बाद दूसरा हमको एग्जाम्पल आता है भीम का। कृष्ण ने भीम को क्या कहा कि तुम जो दुर्योधन को है उसकी जंघा पर मारो, यानी उनके थाय पर मारो युद्ध के अंदर। और गदा युद्ध के अंदर का भी यही एक नियम है, उसका लॉ है। तो उसमें क्या है कि जैसे बॉक्सिंग के अंदर होता है, बॉक्सिंग के अंदर कहता है डोंट हिट बिलो द बेल्ट, यानी नाभि के नीचे आपको प्रहार नहीं करना है, वहां आपको नहीं मारना है। मगर भीम को जब भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इसकी जंघा पर मारो, भीम ने आव देखा ना ताव एक ही वार के अंदर उसकी जंघा को तोड़ दिया। तो यानी ये जो है ना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को हमको सुनना है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को हमको फॉलो करना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगे? भगवान तो स्वयं आते नहीं है, मगर उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने जो भी शास्त्र हैं उनके द्वारा हमको दिए हैं। तो वो शास्त्र कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर जितनी भी भगवत गीता के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो भगवान के स्वयं के वचन हैं। तो हर जगह हम देखते हैं भगवान उवाच है, श्री भगवान उवाच है, भगवान ने बताया। तो भगवान ने बताया है यानी भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करो। तो यहाँ पर जो महाराज बता रहे थे क्लास के अंदर कि अगर कोई कहता है, मतलब कोई ऐसा ही चोर जाके कह देता है कि मैंने चोरी की, अभी जब उसको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा और उसको जज के सामने ले गए, तो वो चोर कहता है कि भाई अरे मुझे भगवान जो है मुझे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं चोरी करूं, तो इसलिए मैंने चोरी की। तभी जज उसको क्या जवाब देगा? भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दंडित करूं, इसके लिए मैं तुमको दंड दे रहा हूं। तो ये जो है एक बात है, मतलब एक समझने की बात है। और भगवान हमेशा भगवत गीता के अंदर के सर्वधर्मान परित्यज्य, तो तुम अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनो तो मैं तुमको पाप से रहित कर दूंगा। अग तो इस पहले तो हमको भगवान के वचनों के ऊपर कभी कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, हमको करना है। तो वहां भगवान हमको अपने सर्व पापों से मुक्त कर देंगे, वो भगवान स्वयं कहते हैं। तो सवाल ही नहीं होता कि अगर जो हम यमलोक में जाएंगे, अगर हम बरोबर सही तरीके से भगवान का इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, तो वी विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। जो भी कार्य हम करेंगे, तो जैसे यहाँ हमने देखा कि जितने भी महात्मा हैं उन्होंने जो भी कार्य किए, और वो उन्होंने जो भी ऐसे कार्य किए, जो झूठ भी कहा उन्होंने, तो वो जस्टिफाइड है। वो मतलब वो हम उसको जो है प्रमाणित कर सकते हैं कि दे आर ओके, दे आर परफेक्टली फाइन, क्योंकि भगवान ने कहा। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा था। और कैसे ये जो प्रभुपाद ने जो ये तत्पर में दिया है कि चीटिंग, इसको बहुत अच्छे से आपने एलेबरेट किया प्रभु, कैसे शास्त्रों से एग्जांपल दिया है। तो इट वाज नाइस प्रभु, एंड दिस चीटिंग इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग भी जब कोई नया भक्त आता है तो सर यार थोड़ा एक माला कर ले बस, या थोड़ा सा एकादशी कर ले, सब धीरे धीरे करके हम लोग, बट इट इज फॉर स्पिरिचुअल कॉज, उसको कृष्ण भक्ति में लाना है, एंड दैट इज मतलब इट इज गुड फॉर हिम, इट इज नॉट गुड फॉर, मतलब हमको चीटिंग करके हमको फायदा नहीं हो रहा, हमारा स्वार्थ नहीं है उसमें। तो वैसे ही महात्मा लोग जैसे ये थे, तो मतलब कैसे वो अपने फायदे के लिए हम लोगों को चीट करते हैं, तो एंड हमारा इसमें उद्धार ही होता है हमारा। तो दिस इज नाइस थिंग। ऑन हम लोग यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को देख सकते हैं कि कितना मतलब धृतराष्ट्र के प्रति कितना उनका मतलब जो था, कुछ भी मन में ऐसा थोड़ा भी ऐसा कुछ भी ऐसा ये नहीं था कि मतलब इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, मुझे मारने का प्रयास किया। तो बिल्कुल लेश मात्र भी उनके मन में, उनका मन मैला नहीं था युधिष्ठिर। ही इज सो मच सैड, ही इज सो मच डिप्रेस्ड, ये हम लोग देख सकते हैं हम लोग। तो थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। सही बात है प्रभु, हम भी जैसे करते हैं, और हम लोग पहले तो उनको बुलाते हैं, बोले सुने नहीं सुने, लेक्चर सुने नहीं सुने, हमारी बात नहीं सुने, मगर हम उनको पहले प्रसाद खिलाते हैं।
वो भी एक तरह से हम उसको प्रलोभन देते हैं, गुलाब जामुन खिला खिला के, जैसे प्रभुपाद ने किया था। तो प्रलोभन जब आता है तो गुलाब जामुन की वजह से आता है। जैसे हम लोग भी अगर इस्कॉन के साथ में जुड़े तो दही राइस खा के जुड़े हम लोग, तो सही है। और ये हमारे उद्धार के लिए झूठ बोला गया है। तो झूठ अगर किसी के फायदे के लिए बोला गया है और शास्त्रों में उसका प्रमाण है, तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो सही माने में वो सच से भी ज्यादा ऊपर है, अगर उसको हम भक्ति के अंदर लाते हैं तो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। यस, सर्वदे गिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत अच्छे से आपने ये जो दो श्लोका था प्रभु, उसको आपने कवर किया प्रभु। और प्रभु जी मेरा एक तो ये जिज्ञासा था कि प्रभु आज संजय के बारे में आज मतलब आज उनका प्रसंग आया हुआ है, और हम भगवत गीता में सिर्फ देखे कि संजय के बारे में कि वो व्यासदेव के शिष्य थे, उसकी वजह से उनको वो देखने का वो शक्ति था। वो छोड़ के प्रभु कुछ संजय के बारे में प्रभु, अगर उनकी जो बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ पता है तो आप वो एक शेयर कर सकते हैं क्या प्रभु, संजय के बारे में, बिकॉज आज उनका टॉपिक निकला हुआ है। और प्रभु जी एक सवाल भी था प्रभु, मैं उसको पूछूं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। या प्लीज पूछिए। अगर नहीं होगा प्रश्न संजय का पूछा आपने, तो संजय का मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ूंगा तो मैं आपको वी कैन शेयर दैट। बाकी दूसरा कोई प्रश्न हो, अगर उसका उत्तर आएगा, या किसी ग्रुप में किसी को संजय के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो वी कैन शेयर। हरे कृष्णा। या बोलिए प्रभु। या प्रभु जी, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हम एक प्रैक्टिशनर डिवोटी से हम साधक भक्त हैं, तो जब कभी हमें घर से सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम मतलब उसको भक्त को इच्छा रहता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बट घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमेशा वो झूठ बोल के जाना पड़ता है उसको घर से कि मैं इधर इधर जा रहा हूँ, बट वो फिर मंदिर में जाता है। तो उस समय मतलब उसको किस तरह से वो करना है प्रो, मतलब उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो ही हैव टू टेल द लाई कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, और वो छोड़ के वो मंदिर में चला जाता है। और ये भी हम सुनते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि हमारी वो आदत नहीं होनी चाहिए, आगे जाके वो आदत हो जाती है। तो हम इसको किस तरह डील करें प्रभु? आज ये चीटिंग की बात आई है, तो हम इसको किस तरह डील करें? हरे वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु। वही बात यहाँ पर आती है कि अगर माँ जब भी झूठ बोलती है, जो माँ अगर बच्चे को दवाई पिलाती है और दवाई पिलाने से बच्चे उस समय उसको झूठ बोलती है, जैसे क्लास के अंदर हमने सुना कि वो दवाई एक्चुअली कड़वी होती है, मगर वो बच्चे को बोलती है बहुत मीठी दवाई है। या तो वो दूसरा उपाय ढूंढती है, वो क्या करती है, उस दवाई को किसी मीठी चीज में मिक्स करके उसको पिला देती है। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा किसका होता है, माँ का होता है या बच्चे का होता है? माँ जो ये सोचती है कि बच्चा अगर दवाई पिएगा तो ये ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह अगर हम भी जो झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर अच्छे कॉज के लिए झूठ है, और वो हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम आगे बढ़ सकें, और अगर हम आगे बढ़ सकें, आगे कैसे, आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ सकें, तो इट इज जस्टिफाइड। प्रयास करें कि धीरे धीरे जो है, अगर सपोज आप 2 बार या 3 बार ऐसे बोलते हो, झूठ बोलते हो कि भाई मैं इधर जा रहा हूँ, फिर आप मंदिर में जा रहे हो, तो जैसे और उनको वहां से मंदिर से जो आप प्रसाद मिलता है या भगवान से जो ऑफर्ड फ्लावर्स मिलते हैं, वो आप आकर आप इनको दे सकते हो। यहाँ से आपने वहां से आके एक बहुत सुंदर खुशबू की वाली माला लेकर आए और अपनी माँ को या अपने पिता को दी, और उनको बोला देखो कितने अच्छे फ्लावर्स, आज मुझे खुशबू लग रही थी, मैं ले आया। और वो एक्चुअली भगवान को ऑफर्ड होंगे, वो आपको उनको देंगे, तो धीरे धीरे इस तरह से उनकी भी सुकृत शुरू होगी। तो इसमें झूठ बोलने में कोई मतलब एज पर मी मेरे हिसाब से वो झूठ सही मायने में झूठ नहीं है। वो किसी अच्छे कार्य के लिए, आध्यात्मिक मतलब प्रगति के लिए, तो वो झूठ नहीं है। और इससे उनका भी भला होगा, ताकि आप उनको भी अपने जो है मतलब उनके संग, उनको भी अपने संग में जोड़ सकते हो धीरे धीरे। और हम भी ऐसे ही है, जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने बताया, हम भी किसी प्रलोभन के कारण ही हम भक्ति के साथ में जुड़े हैं, और इस तरह से मतलब सुकृति शुरू होगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। पर प्रभु जैसे कि हमें अगर ये आदत लग जाती है प्रभु,
तो ऑन दैट टाइम प्रभु हमें किस तरह, बिकॉज फिर वो कभी कभी मतलब हम मतलब एक मतलब ऐसा मतलब वो हमेशा फिर वो आदत लग गया, तो फिर हाउ वी कैन काउंटरएक्ट दैट, अच्छा, बिकॉज वो इसका इसका आदत कभी इसका कभी फिर हाँ, या या इसका उत्तर ऐसे है, मतलब जो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, आत्मेंद्र प्रीति वांछान तरे बलि काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यानी अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ये कर रहे हैं, तो हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान की इंद्र की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। कि भगवान कहते हैं कि भाई सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ, तो हम भगवान की बात सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सुनेगा कौन? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आप भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, भगवान को बोल, प्रार्थना करो कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनको बुद्धि दो, उनको जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, तो आप उनको उनके मन के अंदर बदलाव लाओ। ये आप प्रार्थना किससे कर सकते हैं? ये भगवान से कर सकते हैं। कोई उनको चेंज नहीं कर सकता। मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि तुम उससे मांगो जो सबको दे सकता है। वो हमको उससे मांगना चाहिए जो सबको दे सकता है। तुम उससे जाके अपने बॉस से जाके मांगोगे भाई मेरी इंक्रीमेंट करो, वो नहीं करेगा। मगर भगवान को बोलोगे कि मेरी इंक्रीमेंट करो, तो वो दोनों जगह आध्यात्मिक भी करेगा और भौतिक भी करेगा। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे ये झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर आप इसमें मुझे मेरे सहायक बने और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनके मन में बदलाव लाएं, ताकि न केवल मैं, वो भी मेरे सहारे से वो भी आके आपकी भक्ति में जुड़े। हरे कृष्ण। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for wonderful answer, Prabhu. कि ये जो मतलब वो चीटिंग का जैसा आया ना प्रभु, वो तभी उसके मेरे माइंड में वही एक क्वेश्चन आया प्रभु तुरंत। या प्रभु, फॉर थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस वंडरफुल आंसर एंड वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस समीर प्रभु। हरे कृष्णा, समीर प्रभु। हरे कृष्णा। सत्यराज ने भी हाथ उठा दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस समीर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्लास बहुत मस्त था, बहुत बढ़िया था एज यूजुअल। और आपने जो 2 पॉइंट्स मेरे को जो बताया ना, वो मेरे को मतलब बहुत भाग है। एक तो मतलब आपने जो बताया कि यमराज को मिलने जब युधिष्ठिर गए थे, तो 2 शुद्ध भक्त एक दूसरे को मिलते हैं, उसकी वजह से नरक जाना था, वो एक तो बहुत बढ़िया लगा। और वो मतलब एकदम मतलब जस्टिफाइड ये काइंड ऑफ ये था, रीजनिंग था। और दूसरा आपने अभी जो बताया कि भगवान इज द फाइनल डिसीजन और वही शास्त्र के निर्माता है, तो वो जब कहते हैं तो उसमें सही और गलत का सवाल उठता ही नहीं है। एवरीथिंग इज कृष्णाज विश। लेकिन प्रभु जी इसमें ना मुझे सिर्फ एक चीज जस्ट ऐड करनी थी कि अभी के कलयुग में भगवान का विश कह के लोग कुछ भी निकालते अपने मन से कि ये तो मुझे भगवान ने कहा है करके। जैसे आपने वो जज का उदाहरण दिया था, चोर और जज का, तो अपने को मतलब सिर्फ इतना देखना है कि भगवान का विश हम लोग अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते। हम लोग को जो स्पिरिचुअल मास्टर अपने बताते हैं वो है भगवान का विश, rather than what we think is Krishna's wish. It is what our spiritual master tells us. तो अपने को वो थोड़ा प्रभु जी ध्यान रखना है। That was just my point here. हरे कृष्णा। क्लास बहुत बढ़िया था प्रभु जी। वेरी वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। तो मैं जैसे आपने बताया कि अगर हम अपने विश के हिसाब से चलेंगे तो वो हमारे लिए विष बन जाएगा, विष यानी पॉइजन बन जाएगा। हमको हमारे आचार्यों के, हमारे गुरुजनों के बात से सुनना है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी विश होगी। हरे कृष्णा। एकदम सही प्रभु जी, एकदम परफेक्टली। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद सत्यराज प्रभु जी। आवाज आ रहा है मेरा? एकदम क्लियर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत 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 अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। जैसे मेरे को एक कंफ्यूजन था, वो हेल में क्यों गए, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। लेकिन जैसे आपने पूरा एकदम एक्सप्लेन किया ना प्रभु जी, सब पूरा वही मेरा क्वेश्चन था, तो डाउट क्लियर किया। और प्रभु जी एक चीज मुझे याद आ गया प्रभु जी, जब भी
जस्ट मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मैं जस्ट जैसे कैफे में बैठा था, साइबर कैफे में सर्फिंग के लिए। तो उधर मेरे फ्रेंड आया, उसका नाम हरीश है। तो आया, मेरे को बोला कि आज तेरे को है ना मैं पार्टी देना चाहता हूँ। तो मैं बोला पार्टी? मैं बोला क्या बात है भाई? तो बोला नहीं नहीं ऐसे ही बात है, चलो तो अभी इधर बैठेगा, पूरा दिन कैफे में बैठेगा तू। तो तभी मैं साइबर कैफे में जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठा था। तो मेरे को बोला तू चल आज मैं तेरे को ना पार्टी खिलाता हूँ। तो उसने मेरे को राधा गोपीनाथ जी मंदिर में लेके गया। पहले तो उसने झूठ बोला था कि मैं आज तेरे को पार्टी देता हूँ। तो मैं बोला यार ये किधर लेके आया मंदिर में? तो बोला तो उधर उसने क्लास चालू था इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जी का। तो मैं बोला यार क्या यार, संडे है, घूमना है और ये मेरे को इधर लेके आया। तो बोला कि मैं बोला यार पार्टी किधर है तेरा? तो बोला अभी पार्टी मिलेगा, तू आधा घंटा वेट करके। और बाद तो बाद में अपना कैसा रहता है, बोला कि अभी है ना प्रसाद मिलेगा। तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि प्रसाद मतलब अपने हाथ में मिलता है उतना ही प्रसाद, लेकिन ये पता नहीं था मुझे कि इतना सम्चुअस प्रसादम रहता है। और उस टाइम प्रभु जी राधा गोपीनाथ जी में गुलाब जामुन थे, स्वीट शीरा था एंड सांबर एंड राइस था। तो मेरे को अभी भी वो दिन याद है। तो बोला तू बैठ, जितना चाहिए उतना मेरे को बता। और मैं प्रभु जी उस टाइम इतना प्रसाद खाया तो नेक्स्ट वीक भी है ना मैं उसके पीछे पड़ा कि मेरे को उधर आने का है, तेरा पार्टी तो वो मेरे को चीज याद आ गया कि उसने भी मेरे को झूठ बोला था, लेकिन फॉर दी पर्पस, क्योंकि उसका पर्पस बहुत अच्छा था प्रभु जी। थैंक यू हरीश, जिसकी वजह से मैं श्री राधा गोपीनाथ जी का दर्शन ले पाया और आज मुझे गुरु महाराज मिले और आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिला। और प्रभु जी मुझे एक छोटा सा ये था कि वैष्णव क्वालिटी में आता है ट्रूथफुलनेस, सत्य सार, दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्वालिटी, सत्य सार। तो प्रभु जी अगर वो भगवान और डिवोशनल सर्विस के लिए अगर या भगवान की संतुष्टि के लिए अगर कुछ बोल रहा है तो ही कैन ब्रेक दैट, राइट प्रभु जी? You mean to say? Yeah, correct. But he should not take that as his rightful, जिसको बोलते हैं ना कि भाई मेरा राइट है, मैं हमेशा झूठ बोलूंगा, किसी को नहीं। जिसको अगर आप लेके आते हो तो you have to see that जिसको क्या बोलते हैं, एक डबल एजेड सोर्ड है, ये जो दो धारी तलवार है, दोनों जगह से कट सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से आपको समझाना है उसको। और आपको ये एक जो बोलते हैं ना कि हैबिट नहीं डालनी है कि आपको झूठ बोलना पड़े। ट्राई, जब आप ऐसे करोगे, एक दो बार उसको ले जाओगे, फिर वो आपको मतलब जब, और हमेशा ये आपकी मन के अंदर जो ये ना एक भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ मगर ये इसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, ताकि इसका भला हो और ये जो है कुसंगत से या जो है भौतिक चीजों से इसकी आसक्ति छूटे और ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो। तो इसलिए अगर हम झूठ बोलेंगे, और हैबिट नहीं बनानी चाहिए, ऐसे नहीं कि बार बार हम वो झूठ बोलते रहे, नहीं। वी शुड एक दो बार आपने बोल के और भगवान से क्षमा मांग ली तो सही है। यू डोंट, वो सेम आदमी के साथ में आप बार बार झूठ बोल के नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड हम भगवान से साथ साथ ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर ये जो मैंने झूठ बोला है इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, और मेरा इंटेंशन इसको हर्ट करने का नहीं था, मेरा इंटेंशन इसके अच्छे के लिए था, so that he can take to the devotional practice or devotional service. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी पॉइंट माता जी ने दिए ना? वही प्रभु, मैंने एक भी अपना नहीं जोड़ा है, अभी आंसर भी मेरे को लिख के दे रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी वो एक बार, हाँ प्रभु, वो एक बार आप क्लैरिटी करेंगे प्रभु? आपने बताया था कि जो संजय बहुत दुखी हो गए बिकॉज उनको ये लगा कि ये चीट करके गए, मतलब धृतराष्ट्र जी, गांधारी, माता गांधारी और विदुर जी,
मतलब उनको विदाउट बोले बिना गए, उसकी वजह से वो मतलब उनको ऐसा लगा क्या प्रभु चीट किए बोल के? एग्जैक्टली प्रभु इसकी वजह से ही उन्होंने लिखा, और वो कभी भी यानी यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं और कि वो टोटली डिपेंडेंट थे, जो धृतराष्ट्र थे वो टोटली डिपेंडेंट थे संजय के ऊपर, हर कार्य के लिए, हर चीज के लिए, और छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन। वैसे वो डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, मतलब अगर आध्यात्मिक या कुछ इनको सलाह सुली करनी होती थी तो वो डिपेंडेंट थे विदुर जी के ऊपर। विदुर जी हमेशा उनको, हम आगे के जो श्लोकास पढ़े हैं, पर्पट्स पढ़े हैं, इसके अंदर क्लियरिटी है कि वो हमेशा विदुर से अपना जो है सलाह मशवरा करते थे। मगर अब की बार क्या हो गया कि विदुर जी भी वहां पर नहीं है, और बाकी के जो समय पे कुरुक्षेत्र का युद्ध के समय पे जो पूरा बात हुई थी, तो उस समय वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट थे संजय के ऊपर। संजय उनको पूरा हाल हवाल आंखों देखा हाल सुनाता था, तो और हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट थे संजय के ऊपर। तो यूजुअली ऐसा होता है, हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम कभी किसी चीज से, मतलब कोई हमको क्लैरिटी चाहिए होती है, तो हम जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि हमको वो क्लैरिटी देगा, हम खुद डिसीजंस नहीं ले सकते तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो धृतराष्ट्र था वो टोटली डिपेंडेंट ऑन संजय। एंड संजय जब भी आके युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ गए ये, तो उसको ये भी पता नहीं है कि मतलब गांधारी भी नहीं है वहां पर, जो है धृतराष्ट्र भी नहीं है, और विदुर जी तीनों नहीं है। तो इसके लिए वो कहता है कि ये महात्मा भी, मतलब जो महात्मास है उन तीनों ने मुझे चीट किया, तीनों मुझे बताया बिगड़ चले गए। तो ये उन्होंने क्लैरिटी दी है यहाँ पर। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये व्रजप्रिया ने हाथ उठाया है, पता नहीं किसके लिए। कृष्णा। हरे कृष्णा टोल। सबसे पहले तो मैं आज भी बोलूंगी कि उद्धव रेस प्रभु का क्लास बहुत अच्छा था। प्रभु जी आपने क्लास बहुत अच्छा दिया था, थैंक यू वेरी मच। थोड़े पॉइंट्स मैंने दिए थे, थोड़ी आपने तैयारी की थी, बट आज मैं सबसे प्रेयर का रिक्वेस्ट करूंगी उद्धव प्रेस प्रभु के लिए। आज उद्धव प्रेस प्रभु जी का वार्ड दिवस है, क्या बोलते हैं, जन्मदिन है आज प्रभु जी का। तो आप सबका ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स चाहिए कि हम सब भक्ति में आगे बढ़े। तो प्लीज आपकी प्रेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेयर जरूर कीजिएगा प्रभु के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जन्मदिन मुबारक आपको। कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हम लोग जो बोलते हैं, आप तो टोटली कृष्णा कॉन्शियस हो, हम लोग को आपसे ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेंगे, लेकिन वेरी वेरी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। सब लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सत्यराज प्रभु, आपको अकेले को नहीं, पूरे ग्रुप को पार्टी मिलेगी। हरे कृष्णा। माता जी पिज्जा पार्टी। पिज्जा पार्टी। प्रभु 3 दिन से पिज्जा बना के मैं परेशान हो गई हूँ कसम से। अभी तो लेकिन पूरे ग्रुप को पार्टी मिलेगी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी हम लोग को नहीं मिला पिज्जा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उद्धव प्रेस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। और आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए तो हम भी लाइक कुछ भक्ति कर सकते। तो थैंक यू प्रभु जी, आपके क्लास के लिए थैंक यू। और आज देखो आपका जन्मदिन भी है और आपका भागवतम सेवा भी है। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। ये तो जो भक्तों की कृपा है, जो ये अवसर मिला है, और भगवान की अरेंजमेंट है कि आज के दिन मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि आज पूरा क्लास झूठ के ऊपर था। तो मैं सच बोल रहा हूँ कि वाकई ग्रुप के साथ में ज्वाइन होके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, बहुत सारे अच्छे बहुत क्या, सभी जितने भी भक्त हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छी बातें बताते हैं। और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल याद आता है कि टाइम है तो टाइम परमिट्स, एक छोटी सी मतलब एक एग्जांपल है जो शेयर करना चाहता हूँ, इफ टाइम परमिट्स। यस प्रभु जी आज संडे है प्लीज। अच्छा, तो आज बर्थडे बॉय का तो होगा।
अरे कृष्णा नहीं, एक्चुअली दरअसल बात ये है कि एक मेरे पास एक लड़का आया था, वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही मतलब उत्सुक था और बहुत ही इसमें एंथुजियाज्म भरा हुआ था। और ये तकरीबन नहीं करके 7-8 साल पहले की बात है। तो वो लड़का मेरे पास आया और वो है ना एक एनसाइक्लोपीडिया, उस समय पे एनसाइक्लोपीडिया होता था, अभी तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो एनसाइक्लोपीडिया बुक लेकर आया था, पूरा सेट लेकर आया था और वो बेचने के लिए आया था। तो मैंने बुक खरीदा तो नहीं उससे, पर क्योंकि लाइक यू नो मैंने बोला मेरे लिए एक बेकार चीज है जो मैं पढ़ता हूँ, भागवतम उसमें सब कुछ है, तो वो तो एनसाइक्लोपीडिया से भी ज्यादा बढ़कर है। तो फिर मैंने उसे वो बुक्स खरीद नहीं किए। मगर उस लड़के से एक चीज सीखने को मिली, एंड वो आज तक मेरे जो दिमाग में एक कील की तरह ठुक गई है। वो कहता है कि आप किसी को पैसा दोगे, तो उसने एक एग्जाम्पल दिया, वो मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। उसने कहा कि आप अगर आपका 100 रुपया टेबल पर रखो और मैं अपना 100 रुपया टेबल पर रखता हूँ, आप मेरा वाला 100 रुपया ले लो और मैं आपका वाला 100 रुपया ले लेता हूँ, तो दोनों के पास क्या रहेगा? तो सब ऑब्वियसली आंसर तो ये था कि दोनों के पास 100 रुपए रहेंगे, जो थे वही है, कुछ में फर्क नहीं आया। तो उसने बाद में कहा, अभी यही चीज है कि आप अगर जो है एक आइडिया देते हो और मैं एक आइडिया रखता हूँ आपके सामने, जब आपके पास आप जाओगे तो आपके पास कितनी आइडियाज होंगी? तो मैंने कहा मेरे पास 2 आइडियाज होंगी, एक मेरी आइडिया और एक आपकी आइडिया। और उसने कहा मेरे पास कितने होंगे? तो बोला मेरे पास भी 2 होंगी, एक मेरी खुद की आइडिया और एक आपकी आइडिया। तो बोला इस तरह से ज्ञान जो है हमको बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। मगर जो भौतिक चीजें हैं वो बांटने से घट जाती हैं। तो भौतिक चीजों के अंदर हमको ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमको आध्यात्मिक, तो हमको हर एक को अलग अलग जो पुस्तकें, अलग अलग जितनी भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं वो पढ़नी चाहिए। और उन पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है वो ग्रुप में शेयर करना चाहिए, ताकि 10 लोग अगर हैं, 10 लोग अपनी 10 आइडियाज या 10 छोटी छोटी बातें रखती हैं, तो हर एक के पास जब जाएगा तो उसके पास एक बात नहीं है, हर एक के पास 10 बातें हैं, एक उसकी खुद की बात और 9 जो दूसरे उनके साथ में शेयर करते हैं। सो ऑलवेज शेयर द नॉलेज, एंड जितना भी पढ़ते हैं, जैसे अभी सर्वदेव गिरधारी प्रभु ने बहुत अच्छा सा पॉइंट उठाया कि संजय के बारे में क्या है। तो संजय के बारे में टू बी ऑनेस्ट मैं सब बोलता हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, मगर अभी जब ये विषय उठा है तो इसके ऊपर हम जो प्रयास करेंगे उसको समझने का, और आगे चल के जब भी कोई क्लास होता है तो उसके अंदर हम संजय के बारे में भी बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल फॉर ब्लेसिंग मी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, और विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रभु। और बहुत अच्छा भगवान ने अरेंज किया कि आज ही के दिन आपका भागवतम का सेवा भी रखा, तो आपको भागवतम सेवा भी मिला, भगवान का ग्लोरीफाई करने का मौका मिला। तो वी आर वेरी हैप्पी प्रभु कि कोइंसिडेंशियली ये हो गया, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और यही प्रार्थना करेंगे भगवान के चरणों में कि आप हमेशा भागवतम का जैसा अच्छा स्टडी करते हैं वैसे अच्छा सा इसको एनालाइज करके स्टडी करके वो सबको प्रेजेंट करते रहें और दूसरों को भी भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, हैप्पी बर्थडे प्रभु। बहुत खुशी का दिन है आज, आपका बर्थडे है तो। और प्लीज आप जब भी अभी थोड़े दिन के बाद इंडिया आने वाले हैं तो हमें भी सेवा का मौका दीजिए, आप प्लीज घर पे आ जाइएगा। अच्छा, तो मैं तो यही बोल रहा था कि जब से ये ब्रजप्रिया यहाँ पर आई है और उसने आके आपके जितने भी व्यंजन आपने बनाए थे उसकी तारीफ की है, उसने उसकी सराहना की है, बोले बहुत अच्छा प्रसादम माता जी और उनकी बेटी ने बनाया था। तो बोला तो तभी से मन में मैं सोच रहा था कि कौन सा अवसर मिले कि मैं पूछूं कि मैं कभी आ सकता हूँ आपके घर पर प्रसाद लेने के लिए। तो अभी तो चलो, आज तो क्या कहते हैं कि भाई आज दस्तूर भी है और मौका भी है, तो आपने मुझे ही बुला लिया, तो अभी तो पक्का आऊंगा। हरे कृष्णा। कभी भी आ जाओ ब्रो। पर आज की पार्टी मेरे नाम पे है, पिज्जा पार्टी। यस है। तो अभी पिज्जा सब लोग बोले तो एक कल अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था मैं,
तो वेरी जोकिंगली वाज सेइंग, बोलते हैं कि राधा गोविंद महाराज जी एक बार कहीं पे गए थे, तो यूरोप में थे, तो उनको 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 पसंद नहीं है बोला, तो बोल रहे थे पिज्जा और पास्ता, बोला यह नरक का नरक का रास्ता। और बोल रहे थे, बोले कि जब उनके घर में गए तो उनको वो ऑफर किया, तो महाराज ने कभी देखा नहीं था, बोले ये क्या चीज है। बोले ये पिज्जा है। बोलता अच्छा ठीक है, बोले तो और इतना बड़ा वो रोटी जैसा था, बोले तो खाना कैसे है इसको, तो बोलते इसको खाते हैं। तो एक्चुअली इसने बोला था कट करने का, लेकिन महाराज ने मुझे लगा मुंह से काट के खाना है। इस तरह जो कि तो बोलते हैं कि मतलब किसी तरह बोलते महाराज ने 1-2 पीस खाया, उसमें से बोला बस हो गया। और फिर बात करने लगे कि देखो क्या मतलब कैसी माया है, देखो बोला नाम है पिज्जा और इसको पड़ता है खाना है इसको, बोलता मुझे तो लगा ये पीना पड़ता होगा, इसका नाम है पिज्जा। तो बोलते पिज्जा नहीं, इसका तो खाजा होना चाहिए। तो खाजा होगा, तो खाजा तो जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के को ऑफर होता है वहां पर पुरी के अंदर, जो स्वीट होता है उसको खाजा बोलते हैं। वही कल सुन रहा था, वो सब पिज्जा पिज्जा सुन के मैं हंस रहा था, तो अभी अब सब पिज्जा का बात कर रहा था, मैं बोला जो शहर तो यहाँ पर महाराज थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, तो तभी किसी ने कहा कि पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, तो उन्होंने तभी क्या किया, उसको करेक्ट किया, इफ इट इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड पिज्जा पास्ता वैकुंठ का रास्ता। क्या प्रभु किया है, करेक्ट। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न या कमेंट्स हो तो प्लीज, और वी कैन टेक द नरसिम्हा आरती।